چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کہتے ہیں حکومتی دور میں مافیاز کو پکڑنے میں ناکام رہے، اگلی دفعہ 2/3 اکثریت ملنے تک حکومت نہیں لیں گے۔ ملک میں عام انتخابات کرانے کا مشن، عمران خان اپنی جد و جہد میں مصروف۔ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زمان پاک لاہور میں اہم بیٹھکیں، مشاورت اور غور و فکر کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان نے پہلے اراکین اسمبلی سے ملاقات کی، انہیں نئے انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت کی۔ کہا اپنے حلقوں میں جائیں، عوام کو موجودہ حکومت کی ناکامیاں گنوائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے فرنٹ لائن کھلاڑیوں یوٹیوبرز کو بلایا اور بتایا آصف زرداری اور نواز شریف ہمیشہ امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلے، اب بھی وہ دونوں نہیں چاہتے کہ ملک میں الیکشن ہو۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مافیاز کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ وجہ بتائی نیب پر ان کا اختیار نہیں چلتا تھا۔ اہم تعیناتی پر عمران خان بولے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کرمنل اور مفروض شخص اہم تعیناتی کرے؟ پھر بھی آئین پاکستان کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم کا استحقاق تسلیم کیا۔ انہوں نے بتایا عدم اعتماد کی تحریک پر شوکت ترین کو اہم شخصیات کے پاس بھیجا۔ انہیں بتایا کہ معیشت کو سخت نقصان ہوگا، قوم یہ جھٹکا برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہم سے کہا گیا کہ آپ کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا، مگر اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت عدلیہ کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے، پوری قوم کو توقع ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ عمران خان سے سوال ہوا کہ آپ بیساکھیوں کے بغیر حکومت چاہتے ہیں؟ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ وہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے کرتے ہیں، جس پر عمران خان نے حیرانگی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا یہ پرویز الہی نے ایسا کہا؟ فواد چودھری نے وضاحت کی کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ عمران خان نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کہہ چکے ہیں کہ جو میں کہوں گا وہی ہوگا، تاہم ان کی خواہش ہے کہ 3 ماہ مل جائیں۔ عمران خان نے ایک بار پھر مذہبی انتہا پسندی کا شکار بنانے کی سازش کا بھی ذکر کیا اور کہا ارشد شریف کی والدہ نے جو نام لیے، میرے مجرم بھی وہی ہیں، میرے اوپر حملہ ہوا تو یقین ہے کہ 3 لوگ ملوث ہیں۔ اعظم سواتی اور شہباز گل بھی انہی 3 افراد کے متاثرہ ہیں۔ پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ سے متعلق سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے صوبوں کی تعداد زیادہ کرنا ہوگی۔ آئندہ حکومت کے سوال پر بولے کہ 2/3 اکثریت ملنے تک اب حکومت نہیں لیں گے۔ مسلم لیگ قاف کے رہنما مونس الہی نے ہر موقع پر عمران خان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا دی۔ مونس الہی نے کہا ہم وزادار لوگ ہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں تو ساتھ بھی نبھاتے ہیں۔ پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، جب چاہیں واپس لے لیں۔ رہنما مسلم لیگ کاف مونس الہی سے پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل اور عامر کیانی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مونس الہی نے کہا کہ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، جب تک اللہ کو منظور ہوگا کام کریں گے۔ اپوزیشن کا جم غفیر عمران خان کو دیکھ کر کانپ رہا ہے۔ اپوزیشن والے خوفزدہ ہیں کہ عمران خان اب کیا کرنے والے ہیں۔ اسمبلیوں سے استعفے دیے تو بھی اپوزیشن کا حکومت بنانے کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی ہمارے قابل قدر اتحادی ہیں، ان پر پورا اعتماد ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دے کر دل جیت لیے۔ تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم جاری ہے۔ آج لاہور کے حلقہ N135 میں ریلی نکالی گئی۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے عتیق ملک سے۔ جی عتیق ملک، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کے نام سے دوسرے روز ریلی نکالی گئی ہے اور اس ریلی کو MNA کرامت علی کھوکھر نے لیڈ کیا اور آج کی ریلی جوہر ٹاؤن سے اس کا آغاز کیا گیا اور اپنے حلقے سے ہوتے ہوئے مختلف علاقوں سے یہ آج وابڈا ٹاؤن پہنچی۔ کرامت علی کھوکھر نے آخری خطاب کیا اور وہیں پر آج دوسرے روز ریلی کا اختتام کیا گیا اور یہاں ریلی کے آغاز میں بڑی تعداد میں کارکنان شریک تھے، خاص طور پر ہاتھوں میں پارٹی پرچم اور نعرے بازی کرتے ہوئے اس ریلی کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ریلی اختتامی پوائنٹ کی طرف جو ہے روانہ ہوئی تو بڑی کم تعداد جو ہے وہ اس میں دیکھی گئی۔ کل سے دوبارہ تیسرے روز کی ریلی کا آغاز کیا جائے گا اور اسی طرح لوگوں کو انگیج کیا جائے گا اور لوگوں کو اس جو ریلی ہے اس میں آنے کی دعوت بھی دی جائے گی۔ جی
पंजाब असम्बली की तहलील पर फौरी अमल दरामद करने का फैसला कर लिया। काफ लीग ने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है तो असम्बली तहलील करनी होगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। हमाद अजहर की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद, बोले उन्होंने मईशत तबाह कर दिया। जब उनके केसेस खत्म हो जाएंगे ये एवन फील्ड लौट जाएंगे। हमने फैसला किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को हम तहलील कर रहे हैं, उसके ऊपर जो मेंबरान हैं उनकी राय ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम मेंबरान हैं वो इमरान खान साहब को अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर फौरी अमल किया जाए। और इसलिए हमने हमारे जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ ये असम्बलियां तहलील करने का इरादा रखती है। जगह जगह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बंद होने की और वर्कर्स को और लेबरर्स को फारिग करने की इतलात सुनने में आ रही हैं। मैं वाज़ेह करता रहूं कि इतने बुरे हालात कोरोना की वबा जब पाकिस्तान पे आई थी तब भी नहीं हुए थे जो पिछले 7 माह में हो चुके। जिन्होंने रास्ते का तयन करना है, जो मुसल्लत होके आए, बड़े शौक से आए, उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई रास्ता उन्होंने नहीं दिया। हाँ, अगर हमें कोई रास्ता नजर आया है तो उनके केस बंद होने का रास्ता नजर आया। जिस दिन हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएंगे, केस इनके बंद हो चुके होंगे, ये वापस अपने एवन फील्ड्स में, अपने सरे के महलात में और अपने एमिरेट्स हिल के ऊपर जो घर तामीर किए हुए हैं वहाँ पे जाके एक पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे। हुकूमत की जानिब से सदर को राम करने की कोशिशें जारी हैं। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार ने 24 घंटे में दूसरी मुलाकात की है। उन्होंने सदर मुमलिकत को वजीर आजम का अहम पैगाम भी पहुंचाया। हुकूमती जराए का कहना है कि सियासी पेशरफ्त के लिए मजीद मुलाकातें भी होंगी। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब हुकूमत की तरफ से मुसलसल राब्ते जो हैं वो शुरू किए गए हैं क्योंकि मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं सदर। तो सदर से अब 24 घंटों में अब दूसरे इसहाक डार साहब ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में यही तय पाया है कि आप भी इस सिलसिले को आगे लेके जाया जाएगा और मजीद जो मुलाकातें हैं इसको पेशरफ्त जारी रखने के लिए वो होंगी। और इस हवाले से जो इसहाक डार और सदर से जो मजीद मुलाकातें होंगी उस हवाले से इलेक्शन और जो दीगर सूरत हाल है उस हवाले से हुकूमत अमली मजीद आगे बढ़ेगी और दोनों जो PDM की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है किसी नतीजे में पहुंचने के लिए अब ये मुशावरत का सिलसिला बाकायदा तौर पे जराए की तरफ से ये कहा गया है कि शुरू करने लगे। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। तफसीलात यासिर नजर बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर दें आपको, फैसल वाउडा सेनेट की नशिस्त पर बहाल हो गए। निसार खोर फारिग। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा की सेनेट की नशिस्त खाली होने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वापस लिया है। फैसल वाउडा सेनेट की नशिस्त पर बहाल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्त खाली होने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वापस लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब और FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया है। पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सुलेमान शहबाज की दरखास्त की समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हिफाजती जमानत के लिए पिटिशनर का जाती हैसियत में पेश होना जरूरी है। अदम हाजिरी की सूरत में हिफाजती जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। अदालत ने FIA को हुक्म दिया कि सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट से अदालत आमद तक गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक पेश होने का हुक्म दे दिया। सुलेमान शहबाज इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि सुलेमान शहबाज की वतन वापसी NRO 2 का हिस्सा है। सुलेमान शहबाज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत नैब के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब हैं। रवां साल जुलाई में उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था, जबकि सुलेमान शहबाज इन मुकदमात को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार देते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक 13 दिसंबर को हतमी दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं केस का फैसला जल्द सुनाया जाएगा। तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने हतमी दलाइल तलब कर लिए।
समाअत के दौरान अदालत ने मोहसिन शाहनवाज रांझा से इस्तफसार किया कि क्या आपका रेफरेंस था जिस पर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि हमने दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था। इमरान खान के वकील अली जफर एडवोकेट ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई के लिए कंप्लेंट फाइल की है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराह को हटाने से मुतालिक भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें तो अदालत ने पहले ही रोक रखा है, हम कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे। जिस पर अली जफर एडवोकेट ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर के लिए एक और नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने अपील की कि अदालत इसको रोक दे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इस केस की जल्द समाअत करके फैसला कर देगी। मजीद समाअत 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नौमुंतखब आला अस्करी क़यादत की खिदमात का एतराफ़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। सदर और वजीर आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ऐवान सदर में एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब हुई। Now request General Sahir Shahzad Mirza, Chairman Joint Chief of Staff Committee, to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। General Sayyid Asim Munir Ahmed Shah, Chief of the Army Staff, to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर हुकाम ने भी तकरीब में शिरकत की। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयरशिप बनाने की पोजीशन में आ गई। मीरपुर, भंबर और कोटली के अजला में इंतखाबी नताइज से मुतालिक अपडेट देंगे आज न्यूज के नुमाइंदे इम्तियाज अवान। जी इम्तियाज। जी, आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है और आज तीसरे मरहले के लिए जो पोलिंग हुई मीरपुर डिवीजन में, इसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। एक जानब मुजफ्फराबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो सरकारी नताइज का ऐलान किया, जबकि दूसरी जानब जो है वो रिटर्निंग अफसरान के पास से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है वो आना शुरू हो गए हैं। और अब तक जो सियासी जमातों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, तो ये दावा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि मीरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो है 48 में से 23 नशिस्तों पर उनको बरतरी हासिल है, जबकि अब 9 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो यहाँ से अब तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कामयाब हो चुके हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि 13 नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। और अगर देखा जाए तो बिम्बर में जो है वो मुस्लिम लीग नून आगे और पीटीआई जो है वो पीछे है। और इस तरह कोटली में जो है वो मिला जुला रुझान जो है ना इस वक्त तक सामने आ रहा है। कराची में डॉक्टर सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर फाइज कर दिया। हुकूमत सिंध ने मुर्तजा वहाब का इस्तीफा मंजूर कर लिया। MQM और पीपल्स पार्टी की मुफाहमत का नतीजा, मसाइल में घिरे कराची को नया एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया। डॉक्टर सैफुर रहमान की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। जॉब में कमिश्नर रह चुके हैं। वो डीसी सेंट्रल, डीजी, केडीए और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा जैसे अहम ओहदों पर भी फाइज रहे। डॉक्टर सैफुर रहमान उस वक्त तैनात हुए हैं जब बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ एक माह रह गया। इस मुख्तसर अरसे में उन्हें बेशतर चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त कराची कचराची बना हुआ है। मरकजी शाहराहें हो या गली महल्ले, सड़कें तामीर नौ के नाम पर खुद ही पड़ी हैं। खुशाइन बात है कि इनको जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर की सीट मिल गई है अब यहाँ पर, क्योंकि शहर कराची के ये हैं, इनको इख्तियारात पूरे मिलेंगे और ये यहाँ पे काम करें तो बहुत अच्छी बात होगी। सिर्फ वादे ही वादे होते हैं। हमने जिसको भी आया ना
जो भी आया वादा किया मगर कोई काम नहीं किया। बेहतरी तो आ सकती है अगर देखें वो सिंसियर होकर काम करे, वो तमाम मंसूबे कंप्लीट करे जिससे शहरियों को मुश्किलात हो रही हैं। अवाम कहते हैं दावे तो बहुत होते हैं लेकिन मसाइल का हल नहीं होता। देखना यह है कि नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची वालों की तवक्कुआत पर कितना उतरते हैं। कराची में हंगोरा गोट सुपर हाईवे पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, मकीनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में सुपर हाईवे के करीब कायम हंगोरा गोट पे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीन मुश्तइल। गैर कानूनी दुकानें, मकानात और पथारे गिराए गए तो लोग सड़कों पर आ गए। पहले नारे लगाए, फिर किया पथराव। कशीदगी बढ़ी तो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन वक्ती तौर पर रोक दिया गया।